see it from outside, so if you cut it open like this outer tough part is sclera. Okay. And there is this layer which is called the choroid, and then the retina comes. So eye has three layers. One is this strong layer which protects the eye. This is the sclera. This is how it is shown. Then there is this choroid, which is the vascular structure, and ये जो blood supply देता है, and then the neurosensory part or the vision देने वाला part. Right. And all this, all the information which we get from this, यहाँ से जो image बनता है retina के ऊपर, that goes to the brain through this optic. So the posterior segment will include retina, choroid, vitreous, and the optic. Okay. I think we are again getting stuck. So for seeing the eye or the posterior segment of the eye, we need to dilate the pupils और पुतली को फैलाने की जरूरत पड़ती है, जिसके लिए नॉर्मली आपके क्लिनिक्स में फेनाइलेफ्रिन, ट्रोपिकामाइड कॉम्बिनेशन सॉल्यूशंस आर अवेलेबल, जो आई ड्रॉप्स होते हैं, जिसको हम डिफरेंट नाम से आते हैं, ट्रोपैक, पी, ट्रोपिकासिल प्लस एंड अदर थिंग्स. So this is a combination of phenylephrine eye drops as well as tropicamide eye drops. ये 2.5% and more. So we usually put it 2 to 3 times. फिर patient को आंख बंद करने के लिए कहते हैं. So dilatation takes about half an hour to 45 minutes with this drops. There are other ways of doing this, and वो वाली medicines जो हैं, they may take little longer. So, and this effect remains for 4 to 8 hours. So there are certain conditions where we should not be using these drops. जैसे shallow interior chamber है, जिसमें के ग्लूकोमा होने का खतरा रहता है, उसमें हम ये ड्रॉप्स नहीं डालते. या कोई हेड इंजरी का पेशेंट है जहाँ पे हमने पीपल्स मॉनिटर करने हैं, तो we will not use these drops. So this is a typical fundus diagram. You might have seen some, कुछ लोगों ने देखा होगा कि आपके सर्जन जैसे ऐसे करके इसको ड्रॉ करते हैं. रेटिना है, red arteries are drawn as red, vessel veins are drawn as blue, and any hemorrhages like this in red. कोई break होता है तो it is drawn like this, lattice is drawn like this, some pigment is drawn like this, small atrophic break will be drawn like this. और ऐसे जब रेटिना अपनी जगह से हिलना शुरू हो जाता है तो that is called retinal detachment, that will be drawn as blue. The attached retina is red. In addition, कुछ conditions में रेटिना की छोटी-छोटी hemorrhages या soft exudates या yellowish deposits होते हैं, तो those can also be drawn. So ये एक typical fundus diagram है. कुछ लोगों ने अपने surgeons को ये ड्रॉ करते हुए देखा होगा. ये जैसे अपने को यहाँ दिख रहा है, so it will be something like that. So drawn from the front side. Okay. Somebody is seeing it from this, so he'll be able to draw it. I'm sorry.
Should I just keep it like this? Is it visible? Yes, sir. Yes, sir. You can keep it like that. You are trying to advance with the cursor or some remote? Or the up-down button? Up-down button. You can just try and click, on the cursor on the screen. Just try doing that on the screen itself. Okay. Yeah. So ये कलर कोडिंग है, जैसे रेटिना के आर्टीरियोल हेमरेज माइक्रोएन्यूरिज्म या अटैच रेटिना या होल ब्रेक है, तो दैट इज टू बी ड्रॉन लाइक रेड. Retinal venules, detached retina, outline of break or drusen is blue. Now drusens are actually yellow. Drusen or exudate or edema yellow. Vitreous के अंदर कोई भी hemorrhage है या opacity है, that is green. Pigment and detached choroid is brown, and ora serrata is black. So this is how a vitreoretinal chart will look like. और ये optic nerve drawing. So ये जो chart है, this represents 3 zones. One is near the arcades or the equator, and then the ora serrata, and beyond this is the pars planaris. So on this chart, हम इसको 3 zones में divide करके accordingly, यदि if there is a lesion here, यहाँ पे यदि कोई चीज है तो वो यहाँ ड्रॉ होगी. यदि वो सेंटर के एरिया में है तो accordingly this, so and also clock hours, 1 2 3 4 5 6 clock hours, 12 clock hours. तो ये जो रेटिनल चार्ट है, ये इट यूज्ड टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जब हम रेटिनल डिटैचमेंट सर्जरी के लिए बक्कल किया करते थे. नाउ डेज बिकॉज विट्रेक्टमी इज मोर कॉमन, तो इसकी इम्पोर्टेंस थोड़ी कम हो गई है कंपैरेटिवली. सो सम पीपल डोंट इवन ड्रॉ दिस चार्ट, बट स्टिल इट इज इम्पोर्टेंट टू नो दैट ये चार्ट ड्रॉ किए जा सकते हैं, एंड इनको अकॉर्डिंगली जो स्पॉट जो चीज हमें दिखानी है तो उसको दिखाई. सिमिलरली जो ऑप्टिक नर्व है, दैट कैन ऑल्सो बी ड्रॉन. इसके अंदर कप है, कितना बड़ा है, वेसल्स कैसे हैं, ऑल दैट. ठीक है. तो रेटिना को चेक कैसे करना है? यू माइट हैव सीन योर सर्जन्स और आई स्पेशलिस्ट डूइंग डायरेक्ट ऑफ्थैल्मोस्कोपी. एक छोटा सा ऑफ्थैल्मोस्कोप हैंड हेल्ड टॉर्च की तरह का इंस्ट्रूमेंट होता है, जिससे बहुत क्लोज जाके द सर्जन ट्राइज टू लुक इनटू द आई. और एक इनडायरेक्ट ऑफ्थैल्मोस्कोप होता है जो यूजुअली सिर के ऊपर सर्जन लगा के एक लेंस लगा के उसके थ्रू देखते हैं. और the third way of doing it is with the indirect slit lamp biomicroscopy. जो नॉर्मल स्लिट लैम्प होता है उसके आगे 90D या 78D लेंस लगा लिया जाता है इन बिटवीन, तो आपको रेटिना की डिटेल्स दिखनी शुरू हो जाती हैं. दैट इज कॉल्ड indirect slit lamp biomicroscopy. So these are the various ways in which we can examine the retina. Okay. So ये direct ophthalmoscope है, if some people have seen. So ये ऐसे करके इसको फोकस करके, बट इसका फायदा ये होता है कि you can see the image large. तो यदि सिर्फ कोई छोटी डिस्क देखनी है, मैकुला देखना है, छोटा सा एरिया देखना है, तो ये ट्राई किया जाता है. और यदि हमने सारा रेटिना एक ही व्यू में देखना है तो इनडायरेक्ट ऑफ्थैल्मोस्कोप यूज करता है ना. आजकल ये कम यूज करते हैं बिकॉज इसमें पेशेंट के बहुत क्लोज जाना पड़ता है, और some people may not be comfortable with that. And especially the other techniques of indirect ophthalmoscopy and slit lamp biomicroscopy, they give a better view. And उसमें आप दोनों आंखों से देख रहे हो तो आपको एक स्टीरियोप्सिस या डेप्थ परसेप्शन भी मिलती है, तो उसका व्यू बेटर होता है. इसलिए मोस्टली पीपल प्रेफर टू डू दैट. पर जो पेशेंट जैसे बेड के ऊपर लेटा है, he is not able to sit, और he is not able to travel. कई बार हमें वार्ड में जाके पेशेंट देखना पड़ता है, कोई सिक पेशेंट है, आईसीयू में पेशेंट है, तो उनके लिए ये चीज यूज की जा सकती है डायरेक्ट ऑफ्थैल्मोस्कोप. समटाइम्स बच्चे हैं जो कि वैसे नहीं दिखाते, तो ये बहुत हेल्पफुल होता है. दिस इज
इंटरैक्ट ऑप्थेल्मोस्कोप, मोस्ट ऑफ यू मस्ट हैव सीन दिस। इसमें लाइट जो है ऊपर से आती है और व्यूइंग भी ऊपर से ही होती है। देयर इज अ हेडबैंड एंड देयर इज अ लाइट एंड अ व्यूइंग सिस्टम। एंड ये जो सर्जन के हाथ में लेंस होता है, इसको कंडेंसिंग लेंस कहते हैं। यूजुअली 20 डायप्टर या 30 डायप्टर का होता है, जिसके थ्रू वो इमेज जो है यहाँ एयर में बनता है एंड यू आर एबल टू सी दैट। पर इसका डिसएडवांटेज ये होता है कि ये इमेज जो है उल्टा दिखाई देती है। पर वो आपके लिए शायद नहीं इंपॉर्टेंट होगा बिकॉज सर्जन ने ड्रॉ कर लेना है। तो यूजुअली इसको प्रैक्टिस करने में थोड़ा टाइम लगता है, बट मोस्ट ऑफ द पीपल आर एबल टू। या फिर मोस्ट कॉमनली जो चीज आजकल यूज की जा रही है वो ये है, इसको कहते हैं इंडायरेक्ट स्लिट लैम्प बायोमाइक्रोस्कोपी। और इसमें ये वाला लेंस 90D या 78D लेंस यूज किया जाता है। पीपल डायलेट कर लिए जाते हैं और पीछे से रेटिना जो है वो दिखाई दे सकता है। सर, इज इट अ इंटरेक्टिव सेशन इफ समबडी इज विलिंग टू आस्क समथिंग ऑन जूम, या मैं सिर्फ कंटिन्यू करूं ऐसे ही? मिस्टर कौशिक, हेलो हेलो। Yes, sir. ये कुछ इंटरेक्टिव सेशन है क्या? कोई कुछ पूछना चाह रहा है या मैं कंटिन्यू करूं ऐसे ही? You continue. At the end of it, we will have question answers. ओके, इफ समबडी वांट्स टू नो इन बिटवीन हाँ, तो अगर कुछ है तो पूछ लीजिए बीच में, और यू कैन जस्ट टाइप इन चैट बॉक्स। ओके ओके, सो दैट्स फाइन, थैंक यू। तो इन एडिशन टू जो हम नॉर्मली देखते हैं, जैसे एक आई स्पेशलिस्ट ने पर्दा देख लिया तो ये सब चीजें दिख रही हैं, नॉर्मल पर्दा भी दिख रहा है, तो उसमें कोई डिफेक्ट्स हैं वो भी दिखाई दे रहे हैं। लेकिन आज मैंने देखा, कल किसी और ने देखा है, तो उसमें वेरिएशन हो सकती है। तो उसके लिए द बेस्ट थिंग इज टू टेक ए पिक्चर ऑफ दैट, व्हाट वी कॉल रेटिनल इमेजिंग, या उसको फोटो ले लीजिए। और कई बार क्या होता है कि जो रेटिना के का पर्दा जो है वो हमें दिखाई नहीं दे रहा बिकॉज ऑफ सम रीजन के ये जो बीच वाला हिस्सा है जो कि ट्रांसपेरेंट होता है, जेल की तरह होता है, इसमें कोई रुकावट आ गई है, काइंड ऑफ हेमरेज हो गई है या हेज हो गई है, तो हमें रेटिना नहीं दिखाई देता। तो उसके लिए हमें रेटिना की इमेजिंग की जरूरत पड़ती है। और समटाइम्स यदि वेसल से लीकेज है तो किस टाइप की लीकेज है, क्यों हो रही है, वो सब देखने के लिए भी वी नीड रेटिनल इमेजिंग। ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट दीज डेज। सो एक तो पैथोलॉजी को आइडेंटिफाई करने के लिए कि व्हाट इज द डिजीज, फिर जब हमने दवाई शुरू कर दी तो व्हाट इज द रिस्पॉन्स टू दैट ट्रीटमेंट विच वी आर डूइंग, मे बी वी आर डूइंग लेजर, मे बी वी आर डूइंग इंजेक्शन। तो उसको देखने के लिए कि उसका इफेक्ट क्या आ रहा है, देन दैट आल्सो वी नीड टू डू इमेजिंग। एक बार फोटो करी, उसके बाद जब उसको ट्रीट किया तो उसके बाद नेक्स्ट टाइम जब वो आया तो वी नीड टू फाइंड आउट कि उसका कुछ इफेक्ट हुआ। और कई बार बीमारी को अच्छी तरह समझने के लिए भी सर्जन्स जो है वो रेटिना की इमेजिंग की सहायता लेते हैं। एंड देयर आर few imaging techniques which are used for retinal evaluation or the posterior segment evaluation. And everybody of you must have heard of OCT, optical coherence tomography, which is again a kind of a live histology scan. या रेटिनल इमेजिंग में फंडस फोटोग्राफी और फंडस फ्लोरेसेंट एंजियोग्राफी, या यदि रेटिना नहीं दिख रहा तो अल्ट्रासाउंड। So these are the few things which we will learn a bit about. So ये एक अल्ट्रासाउंड होता है। Why आई अल्ट्रासाउंड is separate from other ultrasounds? Because आई में हमें बहुत ज्यादा डीप नहीं जाना है, but we want a good quality image. So जो इसका पावर होती है, this is 12 megahertz, 10 megahertz or even up to 50 megahertz. And उसकी resolution becomes better, but the depth is not much. So we just are able to reach up to say 40 millimeter or 4 centimeter or be up to 6 centimeter.
तो ये मोस्टली इसीलिए ऑप्थेल्मोलॉजी डिपार्टमेंट्स या आई क्लिनिक्स में ही आपको एक सेपरेट मशीन मिलेगी जिसको बी स्कैन या बी स्कैन अल्ट्रासाउंड कहते हैं। तो इसमें साथ में ये लाइनिंग्स दिखाई देती हैं जिनको ए स्कैन या सेक्शन उसका कट करके क्या वहां पे उसकी इंटेंसिटी है कि इमेज का वो कितना रेजोल्यूशन दे रहा है, तो वो भी साथ में दिखाई देता है। सो दिस इज अ कंबाइंड बी एंड ए स्कैन। सो व्हेनेवर देयर इज नो व्यू ऑफ द रेटिना और हेजी व्यू ऑफ द रेटिना, तो उस कंडीशन में सर्जन्स मोस्टली ऑर्डर बी स्कैन। सो दिस इज हाउ अ बी स्कैन लुक्स लाइक अ रिपोर्ट। ये लेंस वाला पार्ट है जो फ्रंट वाला पार्ट है, और ये रेटिना का इमेज है, और ये जो एक शेडो बन रही है ये ऑप्टिक नर्व का शेडो है। तो रेटिनल इमेज है, व्हेन देयर इज समथिंग ऑन दिस, आइदर अ डिटैचमेंट, देन दिस विल मूव अवे, या कोई इसमें फॉरेन बॉडी पड़ी है, या यहाँ पे ये जो क्लियर एरिया है जिसको विट्रियस जेल कहते हैं, यू माइट फाइंड सम शेडोज इन दिस व्हिच इज बिकॉज ऑफ आइदर इन्फ्लेमेशन, या जैसे एंडोफ्थल्माइटिस में हो जाता है, या जैसे कोई हेमरेज में हो जाता है। तो ऐसी कुछ कंडीशंस होती हैं, तो उनमें बी स्कैन के ऊपर यू विल फाइंड abnormalities। तो इंडिकेशंस फॉर अल्ट्रासाउंड, किन किन कंडीशंस में हम अल्ट्रासाउंड ऑर्डर करेंगे, एंड आई थिंक एज अ काउंसलर आल्सो वन मस्ट नो। एक तो जो पोस्टीरियर विट्रियस डिटैचमेंट होती है, जबकि विट्रियस अपनी जगह से हिल जाता है, या रेटिना डिटैच हो गया है, रेटिनल डिटैचमेंट, टाइप ऑफ रेटिनल डिटैचमेंट रेगमेटोजिनस है, एक्सुडेटिव है, ट्रैक्शनल है, कोराइडल डिटैचमेंट, या विट्रियस के अंदर हैमरेज है। कई बार ट्यूमर्स भी होते हैं, तो कैंसरस ग्रोथ्स हो सकती हैं, रेटिनोब्लास्टोमा हो सकता है, कोराइडल मेलानोमा हो सकता है, या कोई फॉरेन बॉडी है। सो आपके लिए तो इतना ही इम्पोर्टेंट रहेगा कि जब कई बार पोस्टीरियर विट्रियस डिटैचमेंट या रेटिनल डिटैचमेंट को डिफरेंशिएट करना होता है, या कोई ट्यूमर हो, या कोई हेमरेज और एंडोफ्थल्माइटिस को डिफरेंशिएट करना है, या कोई इंट्राओकुलर फॉरेन बॉडी है, तो वो देखना है कि वो कहाँ पे है। तो दीज आर द फ्यू थिंग्स which we are able to pick up on ultrasound। तो ये मशीन काफी लोगों ने देखी होगी, तो और देर आर सिमिलर मशीन अवेलेबल। और फंडस कैमराज, आजकल छोटे छोटे फंडस कैमराज भी आते हैं जो स्लिट लैम्प के ऊपर लगा लिए जाते हैं, या कुछ हैंड हेल्ड कैमराज भी आजकल अवेलेबल है, बिकॉज दे कैन बी अटैच्ड टू योर मोबाइल फोन्स। तो दीज आर फंडस कैमराज, एंड जब इसके अंदर बाकी सब अटैचमेंट्स होती हैं, कुछ फिल्टर्स होते हैं, तो हम इसको रेटिना की एंजियोग्राफी करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। अदरवाइज जो छोटे कैमराज हैं उनमें सिर्फ फंडस की फोटो ही आती है। तो जब हम एंजियोग्राफी करते हैं तो ये ऑप्टिक डिस्क है, ये एरिया है, सेंट्रल एरिया है, एंड ये जो है रेटिना के ब्लड वेसल्स है। जो एक इम्पॉर्टेंट चीज समझने की बात है कि रेटिना के ब्लड वेसल्स जो हैं वो नॉर्मली लीक नहीं करते, वो दे विल फॉर्म ए पैटर्न लाइक दिस। ठीक है, जब भी ये ब्लड वेसल्स से लीकेज हो रही, या ये फ्लोरेसेंस जो है वो लीक कर रही है, तो दैट इज एबनॉर्मलिटी। ठीक है, so that can easily be picked up when we do angiography। So there are few conditions where fluorescent angiography is required: macular edema, diabetic retinopathy, macular degeneration, रेटिना की ब्रांच की वेन बंद हो गई है, आइदर फुल जिसको कहते हैं सेंट्रल रेटिनल वेन ओक्लूजन, या एक पार्ट ऑफ इट जिसको कहते हैं ब्रांच रेटिनल वेन ओक्लूजन, या कोई मैकुला के ऊपर मेम्ब्रेन बन गया, या पत्थर बन गया, या कोई ट्यूमर है। तो ऐसी कंडीशंस में द सर्जन विल से कि इनको डायबिटिक रेटिनोपैथी है, या इसको मैकुलर एडिमा है, या इसको मैकुलर डिजेनरेशन है, तो आप इनकी एंजियोग्राफी कराइए। तो somebody will come to you and tell you कि जी सर has told me कि इनको डायबिटिक रेटिनोपैथी है, और इनको आप सारा समझा दीजिए। तो यू सी दैट इमेज, जो फ्लोरेसेंट एंजियोग्राफी की रिपोर्ट है उसको देख के आप उसके ऊपर उसको समझा सकते हैं पेशेंट को
कि देखिए ये लीकेजेस हैं, ये ब्लड वेसल्स फ्लोरेस कर रहे हैं और यहाँ से डाई निकल रही है. So these are abnormal vessels. So these need to be taken care of either with the help of injections or with the help of laser. Same होता है जैसे कि branch retinal या central retinal vein occlusions. Macular degeneration also is becoming an important part. So CRVO में जो ऐसे करके पिक्चर होगी, the dye will leak from different areas and will pool in the center of it. Similarly, जब यहाँ पे कुछ नए vessels बन जाते हैं, what we call NVD और neovascularization of the disc, जो कुछ नए vessels बन जाएंगे. कोई भी नया vessel जो बनता है वो leaking vessel. तो खास करके जो ऐसी कंडीशन होती है डायबिटिक रेटिनोपैथी में या रेटिनल वेन ओक्लूजन में, तो देयर इज अ formation of a neovascularization of the disc. So angiography में that particular vessel or that particular disc will leak. So that is called a NVD. फिर कई बार there are situations where we don't want to give a dye to the patient. ठीक है, कोई पेशेंट है जिसको किडनी की डिजीज है या कोई पेशेंट है जो कि डाई को एलर्जिक है, या कोई हमें ऐसा लगता है कि इसकी कोई डिजीज है जो कि इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन हमें नहीं मिलेगी डाई इंजेक्ट करने के बाद, तो वी जस्ट से कि इसका सिर्फ फोटोग्राफ्स कर ले. या कई बार हमने पहली बार एंजियोग्राफी करी है तो नेक्स्ट टाइम व्हेन वी वांट टू सी we just say okay, we just take a photograph of that, how the things are improving or how the things have gone down. So we just do a fundus photograph. A typical fundus photo will contain the image of the center of the very back inside of the eye of the retina. Retina की image आएगी, उसमें optic nerve, macula और main vessels दिखाई. So again, it can be a very important tool to document and compare it on a cell. So this is another imaging technique, what we call autofluorescence. So there are certain spots or lesions in the eye, जो आंख के अंदर कुछ स्पॉट होते हैं जो ऑटोमेटिकली फ्लोरेस करते हैं. फ्लोरेसेंस का आपको मतलब पता ही होगा कि जब हम डाई इंजेक्ट करते हैं और ब्लू फिल्टर के थ्रू देखते हैं तो वो चमकते हैं. So there are certain spots in the eye like drusen's or disc जो कि अपने आप ही चमकते हैं यदि आप डाई इंजेक्ट ना भी करो तो भी, तो उसको कहते हैं ऑटोफ्लोरेसेंस. सो ऑटोफ्लोरेसेंस इज आल्सो कमिंग इन अ बिग वे दीज डेज एज अ इमेजिंग टेक्निक, ऑल्दो वो सिर्फ जैसे जियोग्राफिक डिस्ट्रॉफी या एट्रोफी या ड्राई ARMD के लिए अभी तक यूज होते हैं ऐसे. So age-related macular degeneration, detachment, dystrophy, CSR, vitelliform migraine. ऐसी conditions में the surgeon may just say कि आप इसका autofluorescent image. ठीक है, autofluorescent image will look like this. तो ये जो spots हैं ये आपको चमकते हुए दिखाई देंगे. So very important imaging modality these days in the clinics is what we call optical coherence tomography और OCT. और सबसे बड़ी एडवांटेज इसकी ये है कि ये इसके अंदर कोई डाई इंजेक्ट नहीं करनी पड़ती. इट इज नॉन इन्वेसिव टेक्निक. इट इज मोर लाइक टेकिंग अल्ट्रासाउंड ऑफ द आई विद अ वेरी हाई रेजोल्यूशन. एंड जैसे आप किसी टिश्यू को काट के स्लाइड बना के माइक्रोस्कोप में देखते हो, ऐसे ही इसमें टिश्यू काट बिना लिविंग टिश्यू को आप देख सकते हो या उसमें कोई डिफेक्ट्स हैं वो देख सकते हो. सो दैट इज व्हाट इज ऑप्टिकल कोहेरेंस टोमोग्राफी एंड मोस्ट ऑफ द आई क्लिनिक्स नाउअडेज विल हैव ऑप्टिकल कोहेरेंस टोमोग्राफी फॉर इमेजिंग ऑफ द पोस्टीरियर सेगमेंट डिजीज. सो कोई मैकुला का छेद है, मैकुलर होल, पक्कर, एडीमा, ARMD और मैकुलर डीजनरेशन,
ग्लूकोमा, CSR, optic retinopathy, vitreous traction और membrane, इन सब conditions में OCT is useful. And again, on a repeated follow-up, OCT may be required just because के हम उसको देखना चाहते हैं कि वो चीज चेंज हुई, ठीक हुई या नहीं, ठीक है. So OCT is used to evaluate the optic nerve as well as the retina. तो इवन ग्लूकोमा के पेशेंट्स में जिसमें हम ऑप्टिक नर्व का डैमेज देखना चाहते हैं, वो उसमें भी OCT is used. OCT uses light waves. So in conditions where there is a interference with light passing through the eye, like जहाँ पे डेंस कैटरेक्ट है या विट्रियस की हेमरेज है, वहां पे OCT यूजफुल नहीं रहेगी. ऑफ कोर्स वहां पे हमारे पास अल्ट्रासाउंड है जिसके साथ हम यूज कर सकते. एक नई टेक्निक है ये, इट्स पार्ट और एक्सटेंशन ऑफ OCT, व्हाट वी कॉल ऑक्टा और ऑप्टिकल कोहेरेंस टोमोग्राफी एंजियोग्राफी. सो दिस गिव्स यू द retinal circulation as well as choroidal circulation of the retina. पर्दे के वेसल्स की सर्कुलेशन के बारे में आपको इंफॉर्मेशन देता है डाई इंजेक्ट करने के बिना, ठीक है. तो दिस इज अ न्यू मोडालिटी बट द इंडिकेशंस फॉर दिस आर लिमिटेड अभी तक इसकी, क्योंकि इसका फील्ड अभी सिर्फ मैकुलर एरिया तक ही आ रहा है. बिल्कुल पेरिफेरी पे जाके हम ऑप्टिकल कोहेरेंस टोमोग्राफी की इमेज नहीं ले पा रहे. सो अभी तक ऑक्टा की इंडिकेशंस जो है वो लिमिटेड है, बट दे मे बी यूजफुल इन डायबिटिक रेटिनोपैथी, RMD, एफ्यूजन्स, टेंजिलेक्टेरियास, इन्फ्लेमेशंस एज वेल एज. सो ऑक्टा का इमेज कुछ ऐसे दिखाई देगा जिसके अंदर आप वेसल्स, ब्लड वेसल्स भी देख पाएंगे और रेटिना के नीचे जो लेयर्स हैं उनको भी सेपरेटली. तो ये तो हो गया जो रेटिना का पार्ट है, जो एक व्हाट ऑल वी सी इन द पोस्टीरियर सेगमेंट, मोस्टली रेटिना, ऑप्टिक नर्व, विट्रियस और कोराइड. और उनको देखने के लिए हमें क्या क्या टूल्स की जरूरत है और क्या क्या मशीन्स हैं जिनके थ्रू हम उसकी इमेजिंग कर सकते. तो उसके बाद वी विल टेक अप दी इंडिविजुअल डिजीजेस सेपरेटली. सर, कैन वी हैव सम डिस्कशन एट दिस स्टेज और वी जस्ट कंटिन्यू? हेलो हेलो. Yeah, we can continue, doctor. Okay, so we will just continue with this. Otherwise, we can stop for a while and have discussion about imaging and whatever we have dealt with. Okay. Yeah. Okay. So after that, we will take up the diseases. I think that will be Yes. better because that will break the monotony. I got disconnected in between. Mr. Hello? Hari? Yeah. What was the question, sir? No, I think we will be able to, ये monotony भी disturb थोड़ा करेंगे तो people will be more interested. So we can discuss whatever queries everybody has till now. And we will go on to the disease. Okay. Yeah. So that's that's fair. So I request group, if you have questions. So I'll just stop sharing for a moment and then we can have a discussion and then again come back to this. Yeah. So I request audience, if you have any questions on whatever has been covered till now, so you can ask your questions either in chat box or you can simply raise your hand and or unmute yourself and ask the question. So I hope everybody is getting a feel of what we have discussed till now. कुछ लोग कुछ पूछना चाह रहे हैं तो पूछ सकते हैं.
I think we'll continue, sir. So Sure, at sir. the end of it, So, yeah, if we'll just anybody has continue. any question. Yeah, Mr. Hari. Yes, sir. Yeah, just be around. There is a poor connectivity at my end. So, Okay, my okay. I'm here. Wi-Fi I'm got here. I'm here. disconnected. Yeah, I'm here. please. Okay. So please continue. Sorry to interrupt. Okay. So I think there is a question that about ora serrata. So I'll just take this up. जैसे ये रेटिना है, तो रेटिना का जो बिल्कुल आगे का हिस्सा है anteriorly, when it merges with the choroid, ठीक है, and it looks something like this. This is what the area is called ora serrata. This is the most peripheral area of the retina, which usually do not contribute to vision, but जो पेरिफेरल ब्रेक्स होते हैं, डिटैचमेंट शुरू होती हैं, वो यहाँ से होते हैं. और उसके आगे का जो एरिया होता है, जिसको जो सिलरी बॉडी का पार्ट होता है, जहाँ पे पार्स प्लेना और पार्स प्लाइकेटा आते हैं. पार्स प्लेना इज द एरिया वेयर जहाँ से हम रेटिना की सर्जरी इनिशिएट करते हैं. So this is the most peripheral part of the, जैसे ये serrations बनी हुई है ना, छोटे छोटे जैसे दांत के टाइप, तो this is what is called serrata, ora serrata. This is. So I hope that is clear. Thank you, sir. Yeah. So we'll just continue with the rest, and then. Yeah, there is one more question in the chat box. Sure, sir. Yes, we'll take. Will PVD result in RD after few years? Yeah, PVD. PVD is posterior vitreous detachment. So this whole cavity is filled of vitreous, which is a gel or वो transparent. But there are certain strong attachments of vitreous. Strong attachments of vitreous are one at the edge of the disc or on the disc, at the retinal vessel, and at few points where there are some pigment or hole or lattice or जहाँ पे जो vitreous है वो strongly attached. So whenever there is a posterior vitreous detachment or the vitreous detaches from its base, so it can pull along either a break or a vessel or something. So if it pulls a vessel, there'll be a hemorrhage into the vitreous. So if it pulls a break, retinal break, we will come to that in the next part of the talk. Then that break can accumulate fluid behind it and lead the retina to detach. So it is very important that a thorough examination of the retina is done in all cases of posterior vitreous detachment. And if there is any break or a suspicious area, it should be either lasered or. So we will come to iridomacular degenerations as well. Yeah. So I think we'll go on to the next topic about diseases. And so I was just going to talk about posterior vitreous detachment. Okay. So this is how the vitreous will detach from its retina, and if there is any strong adhesion with the vessel or at the back of the retina, it will pull a break. So normally vitreous is attached at the vessels and at the ora serrata. With age, it liquefies, collapses, leading on to a posterior vitreous detachment, and it can lead to floaters and retinal detachment. It can be diagnosed on an indirect ophthalmoscopy. So most of the times you might have seen patients complaining of कि जी मेरे को काले काले धब्बे दिखाई दे रहे हैं, which are floaters basically. So those floaters are because anything which is floating in the liquefied vitreous is forming an image onto the retina.
However, there is nothing outside. बाहर तो कुछ नहीं है, लेकिन वो जो कोई भी ओपेसिटी जो विट्रियस के अंदर घूम रही है वो रेटिना के ऊपर इमेज में. So that is seen by the patient as some black spots or the floaters, which move as the eye moves. वो जैसे जैसे आंख घुमाता है उसके साथ साथ वो घूमता है. तो that is the vitreous opacities which are causing floaters. And I told you how the retinal detachment can occur because of a posterior vitreous detachment, because it will pull a brake. So lattice degeneration, जब आप रेटिना की पेरिफेरी में चेक करते हो with indirect ophthalmoscopy, you might find spots like this. Most of your surgeons will tell you that इनके अंदर lattice degeneration है, या lattice degeneration के साथ छोटे छोटे breaks. हाई मायोपिया में तो बहुत ही कॉमन है, and it can present as floaters or it may be asymptomatic. So these kind of lesions and flat breaks, these can lead to a retinal detachment later. So यदि हम लेसिक लेजर करते हैं या कोई भी कैटरेक्ट सर्जरी करते हैं, कोई भी प्रोसीजर करते हैं, तो यदि रेटिना में आपको कोई ऐसा स्पॉट दिखता है जो कि बाद में रेटिनल डिटैचमेंट को क्रिएट कर सकता है, those lesions need to be lasered. तो उनको लेजर करने के लिए ऐसे करके स्पॉट्स लगा दिए जाते हैं ऑल अराउंड, तो वो ब्रेक जो है वो सील हो जाती है. इट कैन बी कॉल्ड एज अ बराज. जैसे हम कोई किसी चीज को रोकने के लिए वहां पे कोई बराज बना दें, तो ऐसे करके लेजर के स्पॉट्स के साथ या क्रायो के स्पॉट्स के साथ उनको बराज कर दिया जाता है. सिमिलरली जैसे पीवीडी में मैंने आपको बताया कि ब्रेक हो सकता है, जहां पे भी कोई स्ट्रॉन्ग एडिशन हुआ वहां से वो पुल हो गया, तो ऐसे छोटे छोटे ब्रेक्स कैन बी देयर. ठीक है, बट अभी रेटिना की डिटैचमेंट नहीं हुई है, इसके पीछे फ्लूइड नहीं गया है, रेटिना अपनी जगह से हिलना नहीं शुरू हुआ है, और ये पेशेंट फ्लोटर कंप्लेंट कर सकता है, पेशेंट मे नॉट कंप्लेंट एनीथिंग, जस्ट आपको एग्जामिनेशन पे पता चला कि वहां पे ब्रेक है. तो दीज काइंड ऑफ ब्रेक्स ऑल्सो नीड टू बी यूज्ड, बिकॉज ये कभी भी उठ के रेटिनल डिटैचमेंट कर सकते हैं. तो इनको ऐसे करके राज लेजर या रेटिनल फोटोकोगुलेशन उसको सराउंड करने के लिए यूज किया जाता है. तो ये एक फोटोग्राफ है जो कुछ बच्चों ने बनाई है, तो टू शो अ रेटिनल डिटैच. तो जब यहाँ पे ब्रेक होता है एंड देयर इज सम फ्लूइड कलेक्शन बिहाइंड द ब्रेक और बिहाइंड द रेटिना, जो दो लेयर्स हैं, जो एक कोराइड है और एक रेटिना, जो कि यहाँ पे एक अदरवाइज कोई स्पेस नहीं होती, बट देयर इज समथिंग कॉल्ड अ पोटेंशियल स्पेस. तो इसके बीच में यदि कोई फ्लूइड आ जाता है, तो जो रेटिना वाला हिस्सा है, जो पीछे अंदर वाला लेयर है, वो अपनी जगह से हिल जाता है, व्हाट वी कॉल रेटिनल डिटैचमेंट. सो द रेटिना स्टार्ट्स पुलिंग ऑफ फ्रॉम हियर, एंड यहाँ पे वो एज मेम्ब्रेन जो और एज ए कर्टेन फील होता है. The person will come to you with flashes, floaters, and a kind of a curtain coming in front of the eye. The retina जो है अपनी जगह से उठ जाता है और वहां पे fold भी. So when that retinal detachment comes to almost the center, तब patient को vision की disturbance होती है. So there may be a retinal detachment for a few months to a week, to a few weeks to a month, जबकि पेशेंट को कोई सिम्टम नहीं था, या उनको थोड़े बहुत फ्लोटर्स थे, या उनको कोई डिस्टॉर्शन नहीं थी. तो ग्रेजुअली करके वो सिम्टम्स बढ़ गए और सेंटर का विजन भी कम हो गया और डिस्टॉर्शन हो गई. तो वो ग्रेजुअली जो है वो रेटिना के पीछे फ्लूइड जाता रहा और वो डिटैचमेंट बढ़ती रही. सो इफ वी डोंट सेटल दिस रेटिना, दिस डिटैचमेंट विल कीप इंक्रीजिंग और ये सिम्टम्स जो है वो बढ़ते हैं. तो ऐसे जो ब्रेक है, ब्रेक के पीछे फ्लूइड चला गया और रेटिना जो है वो अपनी जगह से हिलना शुरू. सो दिस इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ सडन पेनलेस लॉस ऑफ विजन विद फ्लोटर्स, शैडो इन द विजन एंड फ्लैशेस. मायोपिया में, ओल्ड पेशेंट्स में चोट लगने के कारण, कैटरेक्ट सर्जरी के बाद, दीज थिंग्स आर वेरी कॉमन.
तो ये बी स्कैन में भी और इंडायरेक्ट पे भी मोस्टली दिख जाता है। यदि आपको व्यू हेजी है तो नेचुरली आप बी स्कैन कर सकते हैं। सो रेटिनल डिटैचमेंट को सेटल करने का क्या तरीका है? यू सी, एक सिंपल सी बात है कि जब ये पर्दा जो है वो अपनी जगह से इधर को आ गया, अंदर को आ गया, यू हैव टू वेज टू डू इट। या तो आप बाहर एक स्पंज फिक्स कर दें जो कि इसको अंदर को पुश कर स्क्लेरा, ठीक है, और रेटिना को उसके साथ जोड़, विच इज कॉल्ड अ स्क्लीरल बक्कल, एंड दिस सर्जरी इज डन फ्रॉम आउटसाइड। बाहर से एक स्पंज, सिलिकॉन स्पंज होता है या सिलिकॉन बैंड होता है या सिलिकॉन टायर होता है जो लगा दिया, और वो रेटिना को अंदर को पुश कर देता है और उसके बीच का जो फ्लूइड होता है उसको हम ड्रेन आउट। तो दिस इज वन काइंड ऑफ सर्जरी विच इज डन फॉर रेटिनल डिटैचमेंट। पर उसको हम कुछ कंडीशंस में कर सकते हैं, कुछ कंडीशंस में नहीं कर सकते, या वो कई बार सक्सेसफुल नहीं होता। आई थिंक दैट वी कैन लीव इट टू द सर्जन, बट सफाइस टू से कि जो यंग पेशेंट्स होते हैं जिनमें कैटरेक्ट वगैरह अभी नहीं बना है या जिसमें रेटिना की ब्रेक्स बाहर बाहर हैं, वहां पे बक्कल इजीली लगाया जा सकता है। तो यंग पेशेंट्स में सर्जन विल डिसाइड कि इनको हम पहले बक्कल का ही ऑपरेशन एडवाइस करेंगे और वो बक्कल से ही सेटल हो सकता है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स रेटिनल डिटैचमेंट सर्जरी ऑफ एनी काइंड, चाहे वो बक्कल है या वो विट्रियस की सर्जरी है, विल टेक ऑलमोस्ट सेम टाइम। सर्जरी की कैपेबिलिटी या उसके एक्सपीरियंस पे डिपेंड करेगा। इट मे टेक अबाउट 1 आवर 2 आवर्स और लेस देन 1 आवर। नॉर्मली द रफ आइडिया फॉर टाइमिंग इज अबाउट 1 आवर। या यदि रेटिना की डिटैचमेंट होगी, जब ऐसे होगी, और स्पेशली यदि रेटिना साथ में स्टिफ हो गया, इकट्ठा होना शुरू हो गया, तो हम क्या करते हैं, बाय गोइंग इनसाइड द आई थ्रू पार्स प्लेना, ये वाले छेदों के थ्रू, पार्स प्लेना के एरिया के थ्रू हम छोटे छोटे 23 गेज की नीडल के साइज के 3 छेद बना के वी गो इनसाइड द आई एंड रिमूव द होल ऑफ द विट्रियस। जो मोस्ट ऑफ द विट्रियस यहाँ जहां से जाके हम इसको निकाल, वी विल रिमूव द विट्रियस। जो वो रेटिना की ब्रेक है उसके थ्रू हम उसका फ्लूइड जो है पीछे से निकाल लेंगे और पर्दे को अपनी जगह पे बिठा के उस जगह के ऊपर हम उसकी सील कर देंगे, आइदर विद लेजर और क्रायो, एंड देन पुट सम फ्लूइड इनसाइड टू कीप द रेटिना पुश्ड बैक, ताकि वो पर्दा अपनी जगह पे जुड़ जाए। उसके लिए हमें या गैस डालनी पड़ती है या सिलिकॉन। So these are the 2 treatment options for retinal detachment surgery. One is scleral buccal, the other one is pars plana vitrectomy with cryo with endolaser and gas or oil. So this is another disease which is common. Blood pressure वाले मरीजों में काफी ज्यादा कॉमन होता है, जिसको हम कहते हैं रेटिनल वेन occlusion। जो रेटिना की वेन्स है वो ब्लॉक हो गई, और जब रेटिना की वेन ब्लॉक होती है तो देयर आर मल्टीपल हेमरेजेस, स्वेलिंग और ये एक्सुडेट्स, ये सारा कुछ हो जाता है। एंड अलोंग विद दैट जो सेंट्रल वाला एरिया होता है रेटिना का, उसमें सोजिश आ जाती है, एडिमा हो जाता है। सो दिस कैन बी ए पार्ट ऑफ द, बिकॉज यहाँ से यदि आप देखो, तो ऑप्टिक नर्व से 4 अलग अलग नाड़ियां जो है निकल रही, एक 2 नाड़ियां ऊपर जा रही हैं, 2 नीचे पे जा रही हैं। सो 2, एक नेजल साइड पे जा रही है, एक टेम्पोरल साइड पे जा रही है। सो देर आर 4 स्मॉल ब्रांचेस ऑफ दैट सेंट्रल रेटिनल आर्टरी और वेन, which is either superior temporal, superior nasal, or inferior temporal or inferior. So there can be a occlusion or blockage of one particular vein, like a retinal branch. So supratemporal branch, supranasal branch, inferotemporal branch और infranasal branch. या यदि वो यहीं पे ब्लॉक हो गई है सेंटर ऑफ दी रेटिना में, ऑप्टिक नर्व के पास ही, तो दैट कैन बी अ सेंट्रल रेटिनल वेन occlusion.
So again, the patient will come to you with diminution of vision, floaters and fogginess in vision. So in conditions में injections, anti-VEGF injections और laser की जरूरत पड़ती है. I think that part, treatment part and advanced procedures will be taken up in your next session. So similarly, there can be a central retinal vein occlusion, vision loss, disc की swelling हो जाती है, veins फूल जाती हैं, cotton wool spots, diffuse hemorrhages. Again, the risk factors are hypertension, diabetes, या कुछ blood जिनमें blood thick हो जाता है. So in conditions में आपको फिजिशियन के चेकअप की भी जरूरत है, कंट्रोल चाहिए डायबिटीज का, हाइपरटेंशन का या कोई और किसी तरह की यदि उनको बीमारी है. इवन कोविड के बाद some people got these kind of illnesses. और इनमें क्या होता है कि यदि ये ऐसे ही पड़े रहे या इनको ना ट्रीट किया जाए विद इंजेक्शंस एंड लेजर, तो लेटर ऑन जो आंख का प्रेशर है, जिसको हम काला मोतिया कहते हैं और ग्लाकोमा कहते हैं, that starts to increase. The intraocular pressure starts to increase because of the formation of new vessels. As I told you, angiography पे new vessels बनते हैं, तो इसमें new vessels बन जाते हैं, फिर pressure increase start हो जाता है, what we call neovascular glaucoma or a type of secondary. So CRVO and BRVO are again very important diseases of the retina. It is just like कि यदि आंख की वेन बंद हुई तो CRVO हो गया या BRVO हो गया. Whereas यदि it is more like a. Yeah. You are able to hear me, sir? Yeah, in between there was some problem. Now it's okay, sir. Yeah, my earphones were not working. So I've stopped that. So it is just like a cerebrovascular accident or stroke. So it can be called as a mini stroke also. So this can be a condition which you can say to the patient कि आपका बचाव हो गया है, otherwise यदि ब्रेन की नाड़ बंद हो जाती तो अधरंग या हेमिप्लीजिया हो सकता था. तो it should be taken seriously as far as risk to life or other morbidities is concerned. Then very important part of retina practice all over India and all over the world is what we call diabetic retina. ये जो vessels हैं इनके अंदर bleeding, leakages और new vessels बनने शुरू हो जाते हैं because of diabetes. So this is, as I told you, is normal retina. और जब यहाँ पे vessels में bleeding, leakages, hard exudates और vessels engorgement, bleeding, looping शुरू हो जाती है, that is called diabetic retinopathy. Okay. और बहुत सारे पेशेंट्स रेटिना के क्लिनिक्स में डायबिटिक रेटिनोपैथी के कारण आते हैं, जिसकी डिफरेंट स्टेजेस होती हैं, जिनके हिसाब से हमें उनको ट्रीट करना पड़ता है. एंड एज यू आर अवेयर, डायबिटीज इज बिकमिंग वेरी कॉमन इन इंडिया. एंड इवन जो रूरल एरियाज हैं जहाँ पे लोग कहते थे कि हम बहुत काम भी करते हैं, डाइट का भी ख्याल रखते हैं, वर्जिश भी करते हैं, यहाँ पे डायबिटीज नहीं होती, वहाँ से भी आजकल डायबिटीज के पेशेंट्स आ रहे हैं. और क्या होता है कि बिकॉज दे आर नॉट डायग्नोस्ड आइदर विद डायबिटीज और विद कंडीशंस ऑफ diabetic retinopathy and all, because of either lack of knowledge or lack of facilities, so they come late. So the complications of diabetic retinopathy had already occurred. So we will go to those stages of diabetic retinopathy as well, and what all treatments we can do. So this is just a kind of a diagrammatic representation of diabetic retinopathy. As you all know कि ये माइक्रो एंजियोपैथी है, जो स्मॉल वेसल्स की डिजीज है, जो कि सारे शरीर में इफेक्ट करती है.
किडनी पे भी, हार्ट पे भी, नर्व्स पे भी। तो नॉर्मल आई इज समथिंग लाइक दिस। जब उसमें नॉन प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी होती है तो सिर्फ हेमरेजेस और कॉटन वूल स्पॉट्स और माइक्रो एनेरिज्म्स होते हैं। जब अब नॉर्मल वेसल्स और न्यू वेसल्स बनने शुरू हो जाते हैं तो कुछ ऐसा होता है। So these are the fundus photographs of a patient of moderate NPD, non-proliferative diabetic retinopathy with macular. ये कलर फोटोग्राफ है, ये ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफ है, and this was a 48-year-old male which there are hard exudates, dot blot hemorrhages, ठीक है। और मैकुलर जो एरिया है, जो सेंट्रल एरिया ऑफ द रेटिना है, जिसको हम मैकुला कहते हैं, मैकुलर एरिया जो 500 माइक्रॉन्स का एरिया है, जिसके अंदर यदि लीजन्स होंगे तो दे आर सिग्निफिकेंट। सो दिस होल एरिया इज मैकुला एंड द सेंट्रल एरिया व्हिच इज कॉल्ड फोविया। इसके अंदर यदि स्पॉट्स होंगे तो वो विजन थ्रेटनिंग होते हैं, वो इमीडिएटली विजन को इफेक्ट कर सकते हैं। सो दीज आर द टू एंजियोग्राफी पिक्चर्स। So this is another photograph and angiograms of the moderate non-proliferative diabetic retinopathy with macular area में जब डैमेज होता है, स्वेलिंग होती है, तो मैकुलोपैथी कहते हैं। तो दिस इज पिक्ड अप मोर इम्पोर्टेंटली ऑन ओसीटी कि हम उसकी थिकनेस देख सकते हैं कि सेंट्रल का एरिया, सेंट्रल सबफील्ड थिकनेस और सेंट्रल मैकुलर थिकनेस कितनी हो गई है। तो सेंटर का एरिया कितना थिक हो गया। नॉर्मली इट इज अबाउट 250 to 300 माइक्रॉन्स, बट इफ इट गोज बियॉन्ड 300 माइक्रॉन्स वी नीड टू ट्रीट। तो जब और स्वीयर डिजीज हो जाती है, स्वीयर नॉन प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी विद सर्सिनेट मैकुलोपैथी, ये ब्लड प्रेशर होता है तो ये ऐसे ऐसे सर्कल्स बन जाते हैं, दिस इज कॉल्ड सर्सिनेट। 49-year-old male with dot blot hemorrhages, exudates, flame shaped hemorrhages with सर्सिनेट पैटर्न। तो ये जो है दिस इज अ प्री रेटिनल हेमरेज, रेटिना के आगे एक ब्लीडिंग बन गया, उसको प्री रेटिनल हेमरेज कह दिया। तो इसमें देयर मस्ट बी ब्लीडिंग वेसल्स अंडरनीथ। तो ये जो एंजियोग्राम किया तो यहाँ पे देखिए there is a leakage of vessel, leakage from the vessels. This is a neovascularization or NVE what we call. So this is a proliferative diabetic retinopathy with of course maculopathy. So ये diabetic maculopathy. So diabetic maculopathy and diabetic retinopathy is a very very important part of practice of the retina, because mostly जो patients आते हैं आपके पास diabetic retinopathy। अब ये आ गया OCT। तो एज आई टोल्ड यू द सेंट्रल सबफील्ड थिकनेस, सेंट्रल सबफील्ड थिकनेस और सेंट्रल मैकुलर थिकनेस CMT कह देते हैं इसको, 428 यहाँ से यहाँ तक जो थिकनेस है ये इतनी ज्यादा है, ये इतनी ज्यादा है कि यहाँ पे एडिमा आ गया। एंड दिस इज वेयर यू नीड इंजेक्शंस। अलग अलग तरह के एंटी-VEGF इंजेक्शंस हैं, कोई एवेस्टिन है या रेनिबिजुमेब है, लुसेंटिस है, और भी कई नए नए आ रहे हैं। तो आपको पेशेंट को गाइड करना है कि ये जो एडिमा है, ये जो स्वेलिंग है जिसके कारण नजर कम हो रही है, दिस विल गो डाउन विद इंजेक्शंस एंड यू मे नीड मल्टीपल इंजेक्शंस, एक से ज्यादा इंजेक्शंस की जरूरत पड़ जाती है, और साथ साथ में आपको डायबिटिक कंट्रोल लाना चाहिए। सो ऐसे करके स्पंजी थिकनिंग और सिस्टिक स्पेसेस बन जाते हैं, छोटे छोटे सिस बन जाते हैं। दैट्स ऑल पार्ट ऑफ डायबिटिक रेटिनोपैथी। ऐसे ये डिटैचमेंट होनी शुरू हो गई रेटिना की, सीरियस रेटिनल डिटैचमेंट एज वी। ऐसे कुछ खींच हो जाती है पर्दे के ऊपर, दिस इज कॉल्ड अ पोस्टीरियर हाइलाइड मेम्ब्रेन, जो ऊपर को खींच रहा है। तो इस कंडीशन में आपको पर्दे के ऑपरेशन की जरूरत पड़ेगी। देन देयर कैन बी अ हेमरेज इन द विट्रियस कैविटी। ये जो कैविटी जो ट्रांसपेरेंट है, जो यहाँ पे है, ये इट कैन get filled with blood, which is called a vitreous hemorrhage. तो यदि ये रेटिना के आगे हेमरेज होगी तो दिस इज कॉल्ड अ प्री रेटिनल हेमरेज। अगेन इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ
पेनलेस सडन डिमिनिशन ऑफ विजन और लॉस ऑफ विजन विद फ्लोटर्स। डायबिटिक में हो सकता है, ब्लड प्रेशर में हो सकता है, इंजरी के बाद हो सकता है। बी स्कैन से और इंडायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोप से हम डायग्नोज करते हैं, इंजेक्शन, और उसके बाद यदि उससे नहीं ठीक होता तो ऑपरेशन। तो जैसे मैंने आपको बताया कि ऐसे ऐसे करके 23 गेज की नीडल जितने पतले पतले 3 छेद किए जाते हैं। एक के थ्रू फ्लूइड अंदर डाला जाता है, दूसरे के थ्रू लाइट अंदर डाली जाती है, और तीसरे के थ्रू जो जेली है, जो जेल है, विट्रियस जेल है, वो काटा जाता है, काट के निकाल लिक्विड बना के उसको बाहर निकाल दिया जाता है इसके थ्रू। तो दैट इज कॉल्ड विट्रेक्टमी। तो दैट होल ऑफ हेजी विट्रियस, जो ब्लड के साथ भरा हुआ विट्रियस है, उसको हम निकाल देते हैं और उसको एक क्लियर फ्लूइड या गैस वगैरह के साथ रिप्लेस कर देते हैं। सो दैट इज कॉल्ड विट्रेक्टमी। ये जो लेजर मशीन है, जिसको हम ग्रीन लेजर कहते हैं, 532 ग्रीन लेजर, ग्रीन रेंज में आता है। ये फोटोकोगुलेशन लेजर, जैसे आप किसी चीज को जलाते हैं, कोआगुलेट करते हैं, तो जहां जहां पे भी लेजर लगेगा वहां वहां पे वो वाला टिश्यू जो है वो वाइट हो जाएगा, जल जाएगा। तो हम डायबिटिक रेटिनोपैथी में स्पेशली जो पेरिफेरल एरिया है, रेटिना का बाहर वाला एरिया है, उसमें उसमें ग्रीन लेजर करके पैन रेटिनल फोटोकोगुलेशन, व्हाट वी कॉल PRP, पैन रेटिनल फोटोकोगुलेशन करके उस एरिया को जला देते हैं या खत्म कर देते हैं, ताकि वो अपनी ब्लड सप्लाई ना मांगे। और जब वो अपनी ब्लड सप्लाई नहीं मांगेगा तो जो थोड़ी ब्लड सप्लाई आ रही है वो सेंटर ऑफ द आई में जाएगी, तो जो सेंटर ऑफ द आई है उसमें एडिमा नहीं होगा। So this is the concept of why we are doing pan-retinal photocoagulation. बट वो जो जब आपको वो पेशेंट पूछेगा कि आपने तो वो रेटिना को जला दिया, तो मेरे को बेनिफिट कैसे होगा, तो यू हैव टू टेल हिम कि जो रेटिना जल गया वो आपको विजन में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा, वो बाहर वाला एरिया था जिसको हम फोटोकोगुलेट कर देंगे लाइट के साथ, फोटोकोगुलेशन, लाइट के साथ कोगुलेट कर देंगे और वो अपनी ब्लड सप्लाई नहीं मांगेगा। तो जो थोड़ी ब्लड सप्लाई आ रही है दैट विल बी सफिशिएंट फॉर योर सेंट्रल एरिया, जो कि अपना विजन वाला एरिया है। सो ऐसे ही वी गिव इंजेक्शंस, एज आई टोल्ड यू, एंटी VEGF इंजेक्शंस, एंटी VEGF, एंटी वैस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर, VEGF is VEGF, vascular endothelial growth factor। एंटी VEGF इंजेक्शंस, जो ये इंजेक्शंस होते हैं, ये VEGF को प्रिवेंट करने के लिए आंख के अंदर लगाए जाते हैं, ताकि VEGF बने ना और उसकी जो न्यू वेसल्स बने ना और कॉम्प्लिकेशंस ना। बट इन इंजेक्शंस की, यदि आप आई हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं तो आपको ऑलमोस्ट पता ही होगा कि इनकी एक लाइफ होती है कि ये 1-1.5 महीने से ज्यादा नहीं काम करते और इनको उसके बार बार रिपीट करना पड़ता है। सो यू ऑल्सो हैव टू काउंसल द पेशेंट दैट दिस विल यू माइट नीड रिपीट इंजेक्शन। सो दिस इज हाउ अ विट्रियस सर्जरी इज डन, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। ऐसे करके रेटिना की हेमरेज को रिमूव कर दिया जाए। इस तरह का छोटा सा कटर होता है, 23 गेज, और ये लाइट होती है। देन इज ऑप्टिक नर्व, जो एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट है पोस्टीरियर सेगमेंट का। ये जो सेंट्रल एरिया है इसको कहते हैं ऑप्टिक नर्व, जहां से जो सारे के सारे नर्व फाइबर्स, जो कि इंफॉर्मेशन आती है, जो इमेज बनता है, वो ब्रेन को भेज दिया जाता है। That goes through the optic nerve. The nerve fibers go through the optic nerve, and this optic nerve can get damaged either because of high intraocular pressure, like what we call kala moti or glaucoma, or it can be because of injury or some other diseases of the brain. So there is a gradual loss of vision because of glaucoma. It can be diagnosed on ophthalmoscopy, intraocular pressure monitoring, OCT, and perimetry, and you treat glaucoma or either the medicines or surgery.
So there can be other diseases of the optic nerve which can cause diminution of vision or loss of vision. कि इस नर्व की स्वेलिंग होगी, व्हाट वी कॉल ऑप्टिक न्यूराइटिस, और इस नर्व के ऊपर ब्रेन का प्रेशर जो है वो रिफ्लेक्ट होता है जब ब्रेन के अंदर प्रेशर होगा, बिकॉज दिस नर्व इज डायरेक्टली कनेक्टिंग टू द ब्रेन. तो ब्रेन के अंदर यदि प्रेशर ज्यादा हो रहा है, ब्रेन के अंदर जो फ्लूइड है उसका प्रेशर यदि ज्यादा हो रहा है, तो वो प्रेशर जो है वो इस नर्व को भी स्वेलिंग कर देगा. सो व्हेन यू लुक एट द बैक ऑफ द आई, जो पर्दे को आप देखोगे तो ये जो स्वेलिंग है ये दोनों आंख में नजर आएगी, दोनों ऑप्टिक नर्व्स. सो दैट इज कॉल्ड पैपिलेडिमा swelling. So that person needs physician checkup, and यदि उसको लंबर पंक्चर करके उसका सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड टेस्ट करके कोई और डिजीज या कोई ब्रेन ट्यूमर वगैरह का इलाज की जरूरत है तो दैट कैन बी डन. सो ऑप्टिक न्यूराइटिस मींस कि एक आंख में ही ऑप्टिक नर्व जो है वो स्वोलन है, एंड यूजुअली नीड्स ट्रीटमेंट विद medications like steroids. So this is cystoid macular edema. Post-operatively, especially after cataract surgery, there can be a swelling at the back of the eye in the macular area. यहाँ पे fluid इकट्ठा हो जाता है in the center, just like cysts, and it is called cystoid macular edema. और इसमें भी intravitreal या posterior subretinal injection. Then there is another disease called central serous retinopathy. ऐसे करके सेंटर में स्वेलिंग हो जाती है और बैक ऑफ द रेटिना पे कुछ फ्लूइड इकट्ठा हो जाता है. ओसीटी विल लुक लाइक दिस, एंड यदि आप एंजियोग्राफी करोगे तो यू विल फाइंड अ लीक. ओके, देयर इज अक्युमुलेशन ऑफ फ्लूइड एट द फोविया. So distortion होती है, OCT, angiography, and usually this subsides of its own. But if it doesn't get cured, तो जो leaking point है उसको laser करके spot को, then that fluid can stop. So that is laser photocoagulation can be done to the leaking point in central serous. So this is what we call macular hole. जो सेंट्रल एरिया है उसको मैकुला कहा जाता है, और उसके भी सेंटर में यदि छेद हो जाता है तो वी कॉल मैकुलर होल. ओसीटी पे कुछ ऐसा नजर आएगा कि ये पूरा का पूरा होल बन गया और जो इतने वाला हिस्सा था वो ऊपर उठ गया चला. तो इफ यू सी समथिंग लाइक दिस, दिस इज अ मैकुलर होल एंड दिस विल नीड सर्जरी. इसमें क्या करते हैं, जेली को रिमूव कर देते हैं, पोस्टीरियर विट्रेक्टमी करके जेली को रिमूव कर देते हैं. वी these layers, because there is no traction now, इसके अंदर जो ट्रैक्शन हमने खत्म कर दी, इनको अपनी जगह पे बिठा के then we put a gas, और पेशेंट को उल्टा लेटने के लिए कहते हैं, तो ये होल जो है वो सील हो जाता है. So this is again a very important cause of diminution of vision in older age. तो वो बिकॉज ये सेंटर में है तो ये विजन को डायरेक्टली इफेक्ट करता है, और जब ये भर जाता है, सील हो जाता है, with surgery then the vision improves. There can be some scar at the macula, जो कि जन्म से हो सकता है या कोई चोट लगने के कारण हो सकता है, और यदि उस स्कार के साथ वेसल्स बनने शुरू हो जाएं, what is called a neovascular membrane, then we need injection. So a macular scar can be post-traumatic, after macular hole or inflammation. इसके साथ भी विजन लॉस होता है, ओसीटी और एंजियोग्राफी करी जाती है और इंजेक्शन, और बिकॉज सेंट्रल एरिया है और उसमें यदि वेसल्स बन गए हैं तो उसमें इंजेक्शंस ही लगेंगे, बिकॉज सेंट्रल एरिया में यदि आप लेजर करोगे तो द विजन विल गेट लॉस्ट कंप्लीटली देयर एंड देन. सो सेंट्रल एरिया कैन नॉट बी लेजर्ड, only in few situations this injections will work. So same way, what we call age-related macular degeneration, and sometimes it is there in younger age group, what we call heredomacular degeneration. जो heredomacular degeneration होती है वो hereditary हो सकती है, whereas जो age-related macular degeneration होती है, as the name suggests, it comes with age. So जो lipids बॉडी में होते हैं या लिपिड लाइक सब्सटेंसेस, व्हाट वी कॉल ड्रूजेंस,
वो डिपॉजिट हो जाता है। एंड दिस प्रोसेस ऑफ कोर्स इज एज रिलेटेड. These are of two types. These are of two types. One is called dry ARMD, and one is called wet ARMD. Wet ARMD is a little of a misnomer because wet ARMD में neovascular membrane होता है जो कि leak और bleed करता है. So there is leakage as well as there is a bleeding. Okay. So there is a subretinal or a choroidal neovascular membrane, CNVM or SRNVM, which occurs in wet ARMD, not in dry ARMD. So dry ARMD, as of now, we don't treat except for giving some antioxidant capsules, whereas wet ARMD we treat with anti-VEGF injections. Okay. So जब वो treat हो जाता है या वो without treatment heal हो जाता है, तो it can form a big scar-like situation here, which is not amenable to treatment. इसका फिर उसके बाद कोई हल नहीं है. So this is again a picture of the macular degeneration or age-related macular degeneration. Wet ARMD like this, where there is fluid and leakage and hemorrhage, will need intravitreal injections. So कई बार क्या होता है कि ये मैकुला जो है सेंट्रल एरिया ऑफ द रेटिना, इसके ऊपर एक पक्कर या लिप बन जाता है, जस्ट लाइक जैसे रेटिना इकट्ठा हो गया, जैसे एक शीट है, बेड शीट है, वो वहां पे एक जगह इकट्ठी हो गई, समथिंग लाइक दैट. सो देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू मेम्ब्रेन एट द फोविया जो कि विजन को डिस्टर्ब करता है. वो पेशेंट विल कम टू यू एंड से कि मेरे को डिस्टॉर्शन हो रही है, जो लेटर्स हैं वो टेढ़े हो रहे हैं, तो diminution of vision as well as distortion of vision. So that can be picked up on fundus photography as well as on OCT, and most of the times इसको हमें सर्जरी के साथ ही रिमूव करना, विट्रेक्टमी करके इस मेम्ब्रेन को रिमूव कर दिया जाता है, एंड देन इफ नीड भी कोई गैस डाल दी जाती है. सो हाई मायोपिया, I think most of the counselors will know about myopia because माइनस नंबर जो होता है, जो चश्मे में लगाया जाता है, उसको मायोपिया कहते हैं. और मायोपिया जो नॉर्मल मायोपिया होता है, जो 2, 3, 4, 5, 6 नंबर तक का होता है, उसमें आमतौर पे रेटिना में ज़्यादा चेंजेस नहीं होते. और उसमें जब हम ऑपरेशंस करते हैं, जैसे चश्मा उतारने के ऑपरेशंस करते हैं, तो वो काफ़ी सक्सेसफुल भी होते हैं. लेकिन देर आर नंबर्स विच आर हायर देन -6, और उनके अंदर पर्दे के अंदर भी कुछ चेंजेस आ जाती हैं, जिनको हम कहते हैं पैथोलॉजिकल मायोपिया और मायोपिक मैकुलर डिजेनरेशन. सो रेटिनल डिजेनरेशन एज वेल एज मैकुलर डिजेनरेशन. और इन कंडीशंस में कई बार वहां पे एक वेस्कुलर ग्रोथ हो जाती है, या नाड़ों का गुच्छा बन जाता है, जिसको हम सब रेटिनल न्यूवास्कुलर मेम्ब्रेन कहते हैं. सो द हाई मायोप्स, द फंडस पिक्चर विल बी समथिंग लाइक दिस. फोटोग्राफी पे ऐसा कुछ आएगा, और ये इनमें हाई मायोपिया में डिटैचमेंट, ओपन एंगल ग्लूकोमा, लेरिस डिजेनरेशन और रेटिना के छेदों की इंसिडेंस काफी हाई रहता है. एक और बहुत इंपॉर्टेंट हेरिडिटरी डिजीज है जिसको हम रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा कहते हैं. ऑल्दो दिस इज अ लिटिल ऑफ अ मिसनोमर बिकॉज देयर इज नो इन्फ्लेमेशन. आइटिस नॉर्मली मींस इन्फ्लेमेशन, तो यहाँ पे रेटिनाइटिस लिखा गया है, पर रेटिना की कोई इन्फ्लेमेशन नहीं होती. रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा मींस के रेटिना के अंदर पिगमेंट टाइप के स्पॉट्स बन जाते हैं, और कुछ लोग इसको अंधराता भी कहते हैं, कि पेशेंट को और बच्चे को रात को दिखाई नहीं और डार्क में दिखाई नहीं, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड नाइट ब्लाइंडनेस. और साइडों से भी नजर कम होनी शुरू हो जाती है, और ये इट रन्स इन फैमिलीज. एक पेशेंट, दूसरा पेशेंट, जो आप पूछोगे तो उसके मामा, चाचा, कोई और थर्ड जनरेशन में भी ये चीज हो सकती है. एंड एज ऑफ नाउ रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा की बहुत ज्यादा ट्रीटमेंट्स नहीं है, एक्सेप्ट फॉर गिविंग सम विटामिन ए टैबलेट्स. देन पोस्टीरियर सेगमेंट डिजीजेस में, स्पेशली ऑन द सरफेस ऑफ रेटिना, जब आप रेटिना देखते हो तो उसमें कुछ सोजिश हो सकती है, जो रेटिना के नीचे का लेयर है, जिसको हम कोराइड कहते हैं,
या पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द यूवियल टिश्यू कहते हैं, तो दैट इज कॉल्ड अ posterior uveitis. Along with that, जो blood vessels of the retina है, they can also be inflamed और सोजिश हो जाती है. Inflammation of the retina, choroid and vessels and all of these. And this can occur in both eyes, दोनों आंखों में हो सकता है, किसी भी एज में हो सकता है. इंडिया में ट्यूबरकुलोसिस के बाद काफी कॉमन है. सो कोई भी पेशेंट जो पोस्टीरियर यूवेटाइटिस का आता है उसमें हम ट्यूबरकुलोसिस रूल आउट जरूर करते हैं, और इसमें स्टीरॉइड्स की जरूरत पड़ती है, लेकिन मेडिकल एग्जामिनेशन अलोंग विद दैट इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. पेशेंट यूजुअली कम्स विद नजर कम हो गई है, या धुंधला दिख रहा है, या काले काले दिख रहे हैं. एक और रेटिना की डिजीज है विच इज वेरी क्लोज टू माय हार्ट, जिसके बारे में मैं बहुत बार पढ़ाना भी चाहता हूँ, समझाना भी चाहता हूँ, और मैं पेरेंट्स को भी बताता हूँ, which is called retinopathy of prematurity. You might have heard the name ROP, retinopathy of prematurity, जो कि सिर्फ बीमारी है प्रीमेच्योर बच्चों की. जो बच्चे जन्म से पहले पैदा हो जाते हैं, जो 1000, 1200, 1500 ग्राम के होते हैं, 2000 ग्राम से कम के होते हैं, या वो 30-32 हफ्ते की उम्र में पैदा हो जाते हैं. जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें जो पर्दा है, जो रेटिना है, वो पूरा बना नहीं होता. रेटिनल वेस्कुलराइजेशन स्टार्ट्स फ्रॉम द डिस्क, यहाँ से शुरू होती है और आगे आगे को इधर को पेरिफेरी ओरा सेरेटा की तरफ जाती है. तो जो वेसल्स हैं वो कई यहाँ तक किस लेवल पर पहुंचे हैं और पहुंच के रुक गए हैं, दैट कैन कॉज ब्लीडिंग इन द रेटिना, जिसको हम कहते हैं रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमेच्योरिटी. सो इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी अब तो नेशनल प्रोग्राम के अंदर स्क्रीनिंग फॉर रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमेच्योरिटी और स्क्रीनिंग फॉर आरओपी को मस्ट किया है. जो बच्चे 2000 ग्राम से कम हैं, या 32 वीक से कम की एज में पैदा हुए हैं, या सीख रहे हैं, या नर्सरी में एडमिटेड हैं, उन बच्चों का पर्दे का चेकअप होना जरूरी है. आजकल कुछ उसके लिए भी फंडस कैमरा स्पेशली आते हैं जो कि पर्दे की फोटोग्राफ ले सकते हैं. लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज यही है कि यदि कोई रेटिना स्पेशलिस्ट या आई स्पेशलिस्ट के पर्दे को देख ले, और इनको देखना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि कई बार ये लेट हो जाते हैं, तो वी मिस दैट विंडो पीरियड वेयर वी कैन सेव द विजन. एंड बिकॉज ये प्रीमेच्योर बच्चे हैं और ये बीमारी जो है दोनों आंखों में होती है, तो द चाइल्ड फ्रॉम बर्थ इटसेल्फ विल बी ब्लाइंड if untreated. So that is why the screening is important and screening is being done. So stage 1 ROP. ROP मतलब retinopathy of prematurity. यदि वो vessels किसी स्टेज पे आके रुक जाते हैं और एक एरिया बन जाता है जहां पे वेसल्स हैं, और एक एरिया बन जाता है जहां पे वेसल्स नहीं हैं, और उस एरिया को डिफाइन करने के लिए एक लाइन सी बन जाती है, दैट इज कॉल्ड अ डिमार्केशन लाइन और स्टेज 1 आरओपी. इतनी डिटेल में आपको जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको उसकी स्टेजेस के बारे में थोड़ा आइडिया होना चाहिए. नॉर्मली स्टेज 1 आरओपी पे हम लेजर नहीं करते, बिकॉज ये बहुत छोटे बच्चे होते हैं और ये कई बार लेजर बर्दाश्त भी नहीं कर पाएंगे. तो स्टेज 1 आरओपी में हम उनको यही कहते हैं कि आप हफ्ते बाद चेक कराइए, सो दैट वी डोंट मिस दैट पीरियड वेयर वी आर एबल टू इंटरवीन एंड ट्रीट. सो स्टेज 2 में दिस लाइन बिकम्स थिक एंड व्हाट इज कॉल्ड अ रिज, और इसमें पॉपकॉर्न जैसे टफ्स बन जाते हैं और लूप्स बन जाते हैं. अब इस स्टेज में हमें लगता है कि दिस विल नॉट ग्रो फर्दर. So this avascular retina or avascular area needs to be treated with laser or destroyed with laser. So stage 2 या stage 2 plus या stage 3 में laser किया जाता है. So this is stage 3. And if left untreated, यदि हम इस period को छोड़ दें, तो within few days, maybe 3 days to 7 days, ये वाली स्टेज से नेक्स्ट स्टेज, स्टेज 4 या स्टेज 5 में ये बीमारी चली जाती है, जिसमें के ऑपरेशंस के साथ भी वी आर नॉट एबल टू सेव वेरी गुड विजन.
सो ऑलमोस्ट काफी सारे बच्चे जो 1000 ग्राम से कम हैं, उनमें कम से कम 1 महीने की एज पे एक बार चेकअप हो जाना बहुत जरूरी है। सो द इंसिडेंस ऑफ थ्रेशोल्ड आरओपी, और जहां पे हमें उसके ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ेगी, वो 35 to 36 वीक्स है, व्हिच इज कॉल्ड द स्टेज 3 और स्टेज 2+। एंड बियॉन्ड दैट इज 4, जहां पे रेटिना उठना शुरू हो जाता है और वो मैकुला की तरफ जाना शुरू हो जाता है, और स्टेज 5 जिसमें पूरा का पूरा रेटिना डिटैच हो जाता है। इनमें सर्जरीज की जा रही हैं, लेकिन उसके रिजल्ट्स बहुत ज्यादा अच्छे नहीं है और नजर जो है वो नॉर्मल नहीं हो। तो ये जो है सर्जरी के ऑपरेशंस के बाद, या कई बार जो हम लेट स्टेज में देखते हैं, उस टाइप की कंडीशंस रेटिना की बन जाती हैं, और इनमें जो है बच्चे की दोनों आंख की विजन जो है वो कम रह सकती है। So that's all what we wanted to tell you about the basics of retinal diseases, and I think furthermore it will be taken up by in the next session about anti-VEGFs and other vitreous surgeries and whatnot. So I hope I've been able to do justice with the topic, and whatever you have not been able to understand, or if you want me to translate anything, please let me. I'll just stop sharing my screen and we can all have a good discussion. Yes, sir. Thank you. Thank you so much for the wonderful session. It was indeed in detail, especially fundus images and interpretation of OCT. कई बार काउंसलर थोड़ा कंफ्यूज रहता है कि उसके सामने OCT के कई सारे प्रिंट आउट्स आते हैं, लेकिन व्हाट टू एक्सप्लेन है ना, हाउ टू एक्सप्लेन विद द यूज ऑफ OCT. So it was really helpful with your session. So now I open it for question answers. So those who want to ask questions can simply raise their hands or unmute themselves and ask the question. So you can type your question in chat box. हेलो सर. Hello. Yes, ma'am. हेलो. मुझे एक बात पूछनी थी. जब कैटरेक्ट ज्यादा मैच्योर हो जाता है ना पूरा, मतलब, तो उसका रेटिना पे कैसे असर होता है, एक बार फिर एक्सप्लेन करेंगे तो? देखिए, रेटिना पे एज सच कोई असर नहीं होता है, लेकिन हमें रेटिना दिख नहीं रहा। जब कैटरेक्ट मैच्योर हो गया तो विद ऑल अवर मोडेलिटीज लाइक जो इनडायरेक्ट ऑफ्थैल्मोस्कोपी है या स्लिट लैंप हम करते हैं, तो हमें रेटिना दिखाई नहीं देता। तो हम ये नहीं जज कर पाते कि कैटरेक्ट के ऑपरेशन के बाद पेशेंट को कितना दिखाई देगा। यदि उसके पीछे कोई मैकुलर होल हो या उसके पीछे डायबिटिक रेटिनोपैथी की चेंजेस हो, तो यू विल नॉट बी एबल टू फाइंड आउट। ठीक है, या उसके कोई चोट लगी है, सपोज चोट लगने के बाद कैटरेक्ट बन गया, मैच्योर हो गया, ठीक है, तो आपको ये नहीं पता चलेगा कि पीछे कोई रेटिनल डिटैचमेंट है या हैमरेज। तो इन कंडीशंस में आंख का अल्ट्रासाउंड यदि ऑपरेशन से पहले हो जाए तो वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो रेटिना के ऊपर एज सच कैटरेक्ट का इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन जब आप पेशेंट को काउंसल करोगे तो आप उतने कॉन्फिडेंस से ये नहीं कह सकते कि हम ऑपरेशन के बाद आपको 6/6 विजन जो है दे पाएंगे। यदि आपके पास कोई उसके तरीका हो जिसके साथ आप उसको पता कर सकें कि इसका पीछे का पर्दा ठीक है, आइदर विद अल्ट्रासाउंड और विद एक्यूटीमीटर, पोटेंशियल एक्यूटीमीटर और समथिंग, तो आप पेशेंट को कन्विंसिंगली कह सकेंगे कि आप कोई भी लेंस डलवा लो, वी विल बी एबल टू गेट यू 6/6. ओके, थैंक यू सर. थैंक यू. So there is a question about perimetry, which I think will be taken up in some other session, because perimetry is not part of the posterior segment evaluation today. Although I can tell you perimetry is basically for glaucoma. ग्लूकोमा के लिए फील्ड को असेस करने के लिए जो भी टेस्ट किया जाता है, जो साइड की नजर को टेस्ट करने का
तरीका है उसको हम पेरीमेट्री कहते हैं। मोस्टली ग्लूकोमा में साइड के विजन को इफेक्ट होता है, या जो ब्रेन की कुछ डिसऑर्डर्स हैं उनमें भी साइड विजन इफेक्ट होता है। So there is another Thank you, question. sir. Who has gone for first surgery with monofocal lens and can go for multifocal? I think again this is not in the preview of posterior segment evaluation, but there are lenses available which are called piggyback lenses or secondary IOLs, which can be put on the existing intraocular lens. So वो उनमें आप उसको मल्टीफोकलिटी दे सकते हो, या यदि आपको लगता है कि टाइम थोड़ा हुआ है ऑपरेशन को और आपका सर्जन चाहता है कि एक आई में मल्टीफोकल डाला हुआ है दूसरी में डालना चाहते हैं, तो यू कैन रिप्लेस द लेंस विद अ मल्टीफोकल। एंटी-VEGF आरओपी पेशेंट्स में दिया जाता है, लेकिन पर्टिकुलर कंडीशंस में ही दिया जाता है। सभी कंडीशन, सिर्फ स्टेज 1 जोन 1 डिजीज में एंटी-VEGF दिया जाता है, क्योंकि उसके बाद भी यूजुअली लेजर की जरूरत पड़ जाती है। So this is what I was saying. If one eye has multifocal, the other eye has unifocal, we can always put a piggyback lens or a secondary, another secondary PCIOL in those conditions, what is called a sulcoflex lens, or otherwise the patient will have to use glasses. So silicone lenses, I don't know if people use silicone lenses these days. There used to be silicone intraocular lenses before. So those silicone intraocular lenses will go and get affected when we put silicone oil in the eye. So that is why most of the surgeons, they recommend acrylic lens to be put in the eye. So यदि सिलिकॉन लेंस डला है तो वो हेजी हो जाए, या वो सिलिकॉन ऑयल के टच करने से खराब हो सकता है। So if there is a acrylic lens or a PMMA lens, that not रेटिना कैटरेक्ट सर्जरी के बाद सभी कंडीशंस में डिटैच नहीं होता है, लेकिन पीवीडी का इंसिडेंस कैटरेक्ट सर्जरी के बाद काफी कॉमन है। सो पीवीडी के साथ retina detach ho sakta hai if there is any break or something, and that is why it is very important that we do a thorough retinal examination or a posterior segment evaluation before going ahead with cataract surgery. So that will help and that will save you in these kind of situations where after cataract surgeries or after few days of cataract surgery the patient lands up with retinal detachment and implicates you or cataract surgery to the retinal detachment. So that situation can be avoided if you have done a thorough clinical retinal examination and told the patient that retina is fine. So that means you definitely know that it has come only after the cataract surgery, mostly with PVD. Any other questions, please? Any questions from the audience? Sujit Kumar Mishra wanted to know something. Sujit, are you there? Please yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. You want to know? know some end of history, sir. Sorry? End of related. हाँ बताइए आप. एंडोफ्थेल्माइटिस की बात कर रहे हैं? हेलो. हाँ जी सुजित सुन रहे हैं हम. Sir, you give me some idea of endophthalmitis, sir. एंडोफ्थेल्माइटिस का मतलब बेसिकली है कि जो इंटरनल टिश्यूज ऑफ द आई है, जैसे विट्रियस है, उसमें इन्फ्लेमेशन हो गया. जी सर.
inside of the eye has inflammation, what is called endophthalmitis. Okay. So that can be because of cataract, that can be because of any surgery, post-surgical हो सकता है, post-trauma हो सकता है, or otherwise हो सकता है. Okay, sir. So that's also part of posterior segment, of course. When the vitreous gel, ये जो gel है, ये hazy हो जाता है because of inflammation. Okay, okay. Normally, तो endophthalmitis initially we treat with injections. And Yes, if it sir. does not get cured with injections, then of course we can do a vitreous surgery to remove that gel. How to identify endophthalmitis, sir? So first of all, clinical examination, you will be able to see, maybe you will be able to see some hypopyon in the anterior chamber. Okay. The posterior segment will become hazy. There'll be exudates in the vitreous. And if you are not able to evaluate the retina, then you may do a Okay, sir. scan ultrasound. Okay. Okay, sir. Okay. Okay, sir. Okay, thank you, sir. So as I told you, it can occur after cataract surgery or any other intraocular surgery, after injury, after cataract surgery, glaucoma surgery, or sometimes it can even occur because of some systemic disease, जिसको Okay. हम endogenous endophthalmitis कहते हैं. Okay. से कुछ लोग ड्रग एडिक्ट होते हैं, या कोई लोग हैं जो कि कुछ जिनकी इम्यूनिटी कम है. Okay, तो sir. उनमें जो ब्लड स्ट्रीम की इन्फेक्शन है, ब्लड की इन्फेक्शन कैन ट्रेवल इनटू द आई एंड कॉल लीड ऑन टू एंडोजीनस एंडोथेलियम. Okay, okay. Thank you, sir. Thank you. Okay, well. We have a question from Ms. Swati Mehra in chat box. If you can answer that, sir. Is there any difference in the prognosis if retinal disease occurs before or after cataract surgery? So I think, if I'm not mistaken, Swati is trying to ask me about diabetic retinopathy, and it has a bearing on cataract surgery. Because यदि diabetic retinopathy cataract surgery से पहले है, तो उसको diabetic retinopathy को पहले treat करना चाहिए. Because diabetic retinopathy tends to increase after cataract surgery, either with injection or with laser. But sometimes the cataract is so dense that you are not able to treat the diabetic retinopathy or any other disease of similar to that. So you may just give an injection and do cataract surgery and later on take up the retinal pathology. So is there any difference in prognosis if retinal disease occurs before or after cataract surgery? So prognosis will also be guarded, because if you are saying retinal detachment occurs after cataract surgery, then of course, if we are able to fix it properly and in time, we may be able to get back the full amount of vision which we expect after cataract. लेट हो गया और वो रेटिना सेटल नहीं हुआ, तो उतना विजन एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता. सिमिलरली यदि रेटिना में स्कार है या मैकुलर होल है, तो नेचुरली even after cataract surgery the prognosis will not be very good. As you all know, what we are doing in cataract surgery is we are just removing this lens. ये जो लेंस है जो यहाँ जोन्यूल्स के साथ लगा हुआ है, we are just removing this lens. Okay, so we are removing an obstruction from the path of the rays of light which are going inside. So if the retina is not normal, the vision will not be proper. So if I just say, give you a very crude example के जैसे आँख है, तो it works like a camera. कैमरा में एक लेंस होता है, एक फिल्म होती है. तो यदि फिल्म ठीक नहीं है,
तो यदि हम लेंस को चेंज भी कर दें तो भी जो इमेज है वो सही नहीं बनेगी. So this is something like that. So if the retina is not normal, the image of the whatever object you have outside will not be proper. So even after cataract surgery, the vision will depend on the health of the central retina or macula. And of course, the scar cannot be removed with injections. यदि कुछ स्कार ऐसा है जिसमें हमें लगता है कि सर्जरी के साथ उस स्कार को रिमूव करके सेंट्रल एरिया को क्लियर किया जा सकता है, देन सर्जरी माइट हेल्प. बट एंटी-VEGF इंजेक्शंस आर ओनली फॉर जहां पे हमें लगता है कि VEGF रिलीज हो रहा है, जस्ट लाइक इन डायबिटिक रेटिनोपैथी, इन vascular diseases like vein occlusions, or where there are new vessel formations like ARMD. Anti-VEGF injections is not a panacea for each and every retinal disease. ये नहीं है कि आप कोई भी बीमारी आएगी तो आप कहोगे भी हमारे डॉक्टर साहब इंजेक्शन लगाएंगे तो ठीक हो जाएगा. Anti-VEGF is only for those particular diseases where there is a leakage, there is a hemorrhage. स्कार को आप एंटी-VEGF इंजेक्शंस लगा के नहीं ठीक कर सकते. सो रेटिना सर्जरी, ऑफ कोर्स, आई थिंक इफ यू हैव वर्कड विद आई सेटअप्स, यू ऑल नो रेटिना सर्जरी एक तो ये है कि लॉन्ग सर्जरी है, थोड़ी डिफिकल्ट टू लर्न सर्जरी है, और सेटअप भी बड़ा चाहिए, माइक्रोस्कोप भी बड़ा चाहिए, मशीन भी चाहिए, लेजर भी चाहिए, क्रायो भी चाहिए, फिर उसके साथ आपको एक अच्छी असिस्टेंस की भी जरूरत पड़ती है, और उसके बाद पेशेंट की अटेंशन या पेशेंट की कोऑपरेशन भी उतनी ही चाहिए होती है. बिकॉज हम आपको कह रहे हैं कि गैस डाली है या सिलिकॉन ऑयल डाला है, विच इज बेसिकली लाइटर देन वाटर एंड इट विल रेज अप. सो यदि वो पेशेंट उल्टा नहीं लेट पा रहा, ठीक है, so it will not be able to support that, tamponade that retina. So the retina surgery will fail. So if you have left some break which is not yet closed, or if you have left some traction or which is not yet relieved, the surgery may fail. So सबसे बड़ी complication जो retina surgery की है, in addition to endophthalmitis हो सकता है या कुछ और, कि failure of retina surgery. तो फर्स्ट सर्जरी में नॉट बी सक्सेसफुल. और दूसरी जो चीज है कि जब रेटिना डिटैच्ड रहता है तो वो सिकुड़ना शुरू हो जाता है या इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, जिसको हम कहते हैं PVR और प्रोलिफरेटिव विट्रियो रेटिनोपैथी. प्रोलिफरेटिव विट्रियो रेटिनोपैथी में जो श्रिंक होना शुरू हो जाता है, सो देन इवन आफ्टर 2 or 3 or 4 surgeries, the retina may not settle, and once it goes to that stage, we sometimes say कि हमने इसमें ऑयल डाल दिया, अब हम ऑयल को निकालेंगे नहीं, जितनी विजन है उसको उतनी पे रहने दीजिए. Because beyond that, even if you keep doing surgeries, you will not help the patient. And of course, उस स्टेज में even blindness भी हो सकती है. So complications of a retina surgery, how bad it can be. Can a person go blind if the surgery or injection or laser go bad? So there are a lot of variables in retina surgery. Surgeon's competence, surgeon's setup, and patient cooperation. And most importantly, patient's luck and surgeon's luck. Because as I always say, and you might have seen it written in so many doctors' clinics, I treat, he cures. So we, in spite of doing our best efforts, we may not be able to achieve 100% results. So cataract surgery से पहले OCT scan जरूरी है. If you are able to see the retina, और आपको देखने में पूरा लग रहा है कि ठीक है,
then you may not do OCT scan. पर आजकल जैसे हम प्रीमियम लेंस करते हैं, जिसमें जैसे मल्टीफोकल डाल रहे हैं या कोई टॉरिक लेंस डाल रहे हैं, जिसमें पेशेंट बिल्कुल 6x6 विजन चाहता है और दैट टू विदाउट ग्लासेस, देन वी जस्ट वांट टू मेक श्योर दैट वी आर नॉट मिसिंग एनीथिंग। उन कंडीशंस में हम पहले पेशेंट को एक OCT स्कैन कर लेना जरूरी समझते हैं। कुछ क्लिनिक्स में प्री ऑपरेटिवली जैसे इंट्राकुलर लेंस पावर की जाती है, ऐसे ही OCT स्कैन और पेंटाकैम और स्पेकुलर माइक्रोस्कोपी भी की जाती है। सो जस्ट लाइक यदि आप रेटिना नहीं देख पा रहे तो आप एक अल्ट्रासाउंड करते हो, ऐसे ही टू मेक श्योर दैट रेटिना इज फाइन यू विल नीड अ OCT स्कैन। और कई बार क्या होता है कि आपको यदि कोई डाउट लग रहा है तो बिफोर द ऑपरेशन यू वांट टू डॉक्यूमेंट के पीछे सब ठीक है, तो भी हम OCT स्कैन पेशेंट का कर लेते हैं। And sometimes even if the patient is not willing to pay, we do it without payment, because that will help us save us later on. हमें जब यदि कोई उसके ऊपर कोई लीगल इम्प्लीकेशंस आती हैं, कोई पेशेंट हमें बाद में कहता है कि हमारी नज़र क्यों नहीं बनी, तो उसमें हम ये चीज़ उनको बता सकते हैं कि जी देखिए हमने पहले भी स्कैन किया था जो कि अब नॉर्मल था। सो कहाँ पे हम गैस डालेंगे, कहाँ पे हम ऑयल डालेंगे, ये चीज़ नॉर्मली डिसाइड होता है कि यदि तो देखिए आप इतना तो समझ रहे हैं कि गैस और ऑयल दोनों चीज़ें जो हैं वो पानी से हल्की हैं और वो ऊपर उठेंगी, और जब हम उनको पेशेंट को उल्टा लेटने के लिए कहेंगे तो वो रेटिना को पुश करके रखेंगी, दैट इज इट विल टेम्पोनेट द रेटिना, टेम्पोनेट द सरफेस। बट व्हाट हैपेंस विद गैस एंड स्पेशली कि जो SF6 गैस है वो थोड़ा टाइम रहती है, C3F8 उससे थोड़ा ज्यादा टाइम रहती है, लेकिन सिलिकॉन ऑयल एक ऐसी चीज है जो जितनी देर अंदर है वो उसका बबल छोटा नहीं होगा। So if you have a single break in the superior quadrants, ऊपर वाले पार्ट ऑफ द रेटिना में सिंगल ब्रेक है या एक ही क्वाड्रेंट में ब्रेक्स, तो वी टेंड टू पुट गैस विच विल गो ऑफ इट्स ओन, अपने आप खत्म हो जाएगी 15-20 दिन में, महीने में। लेकिन यदि नीचे का रेटिना है, इंफीरियर ब्रेक है, जहां पे के गैस का बबल जल्दी ही अपना इफेक्ट खत्म छोड़ जाएगा, वहां पे वी नीड टू पुट ऑयल, सिलिकॉन ऑयल, बिकॉज सिलिकॉन ऑयल विल रिमेन इन द आई टिल दैट टाइम वी डोंट रिमूव इट। जब हम उसको निकालेंगे तभी वो उसका इफेक्ट खत्म होगा। गैस का इफेक्ट जब बबल 50% रह जाता है तो उसका इफेक्ट जो है वो खत्म होना शुरू हो जाता है। एंड द अदर पार्ट इज इफ यू आर नॉट श्योर दैट यू हैव सील्ड ऑल द ब्रेक्स, यदि आपको ये लगता है कि कोई ब्रेक छूट ना गई हो और या आपको ऑपरेशन के बाद कोई लेजर करने की जरूरत पड़ेगी, तो आप ऑयल डालते हो, क्योंकि सिलिकॉन ऑयल के थ्रू आप रेटिना की लेजर कर सकते हो, गैस के थ्रू रेटिना की लेजर नहीं की जा सकती। So these are the few situations where you use gas or oil, and normally हमारे पास 2 या 3 तरह की गैसेस अवेलेबल हैं, एक SF6 होती है, एक C3F8 होती है, एक C2F6 होती है। Most of the surgeons they use either SF6 which is a little short acting, 2 हफ्ते में खत्म हो जाती है, और C3F8 जो है takes about a month। बट SF6 के साथ एक चीज बहुत जरूरी है पेशेंट को समझानी और काउंसल करनी, कि जो SF6 गैस है या फॉर दैट मैटर कोई भी गैस है, वो जब आप बाय एयर फ्लाई करोगे तो वो एक्सपैंड हो जाती है और उसके कारण इंट्राओकुलर प्रेशर बढ़ सकता है। सो जो पेशेंट के अंदर गैस डाली है उस पेशेंट को बाय एयर ट्रेवल करना मना करना पड़ता है। सो समटाइम्स जो ऐसे कुछ पेशेंट्स होते हैं जो दूसरे कंट्री से आए हैं या बाय एयर ट्रेवल करके अपने घर जाना चाहते हैं, तो उनमें यू माइट हैव टू पुट ऑयल जस्ट फॉर दिस रीजन।
if silicone oil seeps to the anterior chamber, would a re-surgery help? How complicated it would be? If the silicone oil comes into the anterior chamber में silicone oil आ जाता है, तो वो कॉर्निया के सेल्स को डैमेज कर सकता है. लेकिन जब हम सिलिकॉन ऑयल निकालते हैं, क्योंकि वो लाइटर देन वाटर है, ऊपर को उठता है, तो इट विल ऑल कम आउट. Either you can remove it from the limbus, just like जैसे हम फेको के टाइप पे छोटा सा वुंड बनाते हैं लिम्बस में, ऐसे ही हम सिलिकॉन ऑयल इंटीरियर चैम्बर से निकाल सकते हैं. लेकिन जब यदि वो ज्यादा टाइम पड़ा रहे, if silicone oil remains in the eye for long time, it will damage the cornea, and then when the silicone oil starts to emulsify, it will block the trabecular meshwork and lead to scanty. So anterior chamber में जब ऑयल आता है, तो हमें ऑयल निकालने का प्रोसीजर जो है उसको ज्यादा महत्व देना पड़ता है, और उसको जितना भी टाइम हमें पर्दे को जोड़ने के लिए उसको रखना है, उसके बाद उसको निकाल देना जरूरी है. और ऑफ कोर्स यदि कॉर्निया डैमेज हो जाएगा या सेकेंडरी ग्लूकोमा हो जाएगा, तो उसको नजर पे इफेक्ट पड़ेगा, विजन विल बी नॉट दैट गुड. कैन ग्रीन लेजर एंड इंट्राविट्रेल इंजेक्शन be done together on the same eye? Usually injections and lasers are not done on the same day. लेकिन आज इंजेक्शन लगा के कल लेजर किया जा सकता है, आज लेजर करके कल इंजेक्शन किया जा सकता है. And most of the time, especially in diabetic retinopathy, जहाँ पे macular edema भी है और साथ में proliferative diabetic retinopathy भी है, वहाँ पे दोनों चीजों की जरूरत पड़ती है. और पहले हम इंजेक्शन लगा देते हैं, उसके बाद हम लेजर शुरू कर देते हैं. 1, 2, 3 सेटिंग्स की जा सकती है. एंटी-VEGF इंजेक्शंस आरओपी में मैंने पहले भी बताया कि वो यूज की जा सकते हैं, बट वो कुछ पर्टिकुलर कंडीशंस में ही यूज किए जाते हैं जहां पे लेजर करने की पॉसिबिलिटी कम होती है. बच्चा बहुत छोटा होता है, उसकी अभी भी ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट है, वो निक्कू से बाहर नहीं लेके जाया जा सकता, या उसकी डिजीज इतने सेंटर में है जहां पे लेजर नहीं की जा सकती. नॉर्मली एंटी-VEGF इंजेक्शंस इसलिए कम दिए जाते हैं क्योंकि एंटी-VEGF इंजेक्शन लगाने के बाद भी हमें लेजर करने की जरूरत है. एनी टाइप ऑफ गैस हेल्प इन कॉर्नियल एंडोथेलियल डिफेक्ट आफ्टर इंट्राओकुलर सर्जरी ट्रॉमा? सिर्फ डेस्मेट्स मेम्ब्रेन डिटैचमेंट, और डेस्मेट्स डिटैचमेंट की कंडीशन में हम गैस डालते हैं. डेस्मेट्स को फिक्स करने के लिए वी कैन यूज अ गैस इनटू द इंटीरियर चैम्बर. हम एयर भी डाल सकते हैं, लेकिन एयर एक दिन में खत्म हो जाएगी. सो इफ यू वांट दैट गैस टू हैव इट्स इफेक्ट फॉर अ लॉन्गर टाइम, say for a week, you can put C3F8 or SF6. Although the damage to the endothelium may be a little more. So that's, I think, very nice and interactive part, which I always like, because more the questions, more we feel that the people have at least understood what we are saying, and they are curious to know more. So that gives the satisfaction of being a speaker. Yes, sir. Yes, sir. It was a wonderful and very informative session. And I think it provoked a lot of questions. We got a lot of questions from audience. I had few questions, but then, because of time constraint, I think they were more related. We can take up shortly, very quickly. No, they were more related to the counseling part of it. So we can take it during the advancements in eye care of posterior segment. If you have some short questions, I can always answer that. No, I mean, the whole purpose was making them equipped with the clinical and technical knowledge, which I think you have done it wonderfully, and a lot of new things to learn, and I'm sure everybody is really happy with today's session. So
even after this, if anybody has got any question, you can simply, mail it to the Ophthal team, and we'll try to get your answers to these questions from sir, directly to you or to the group. So thank you so much, Dr. Garg, for this session again, and thank you all for joining in. And I hope it was a very helpful session for you all too. So next week, Saturday, we are going to have advancements in eye care, anterior segment. And the next Sunday, we will have advancements in eye care, posterior segment. So stay tuned. From my side also, I would like to thank Ophthal Group for taking this initiative and helping our staff and our counselors also to learn more about ophthalmology. And these programs are really helping practitioners. And I think Kanthil sir is doing a great service by doing this. Thank you, doctor. Thank you so much, doctor. So can we share this PPT to the participants, doctor? Yes, sure. I can send you a mail of this. Okay. Can Okay. Probably send it to in the group or whatever you want. Okay. Yeah, I'll send a mail to Yeah. the same mail from where I got the Yeah, mail. info@ophthalmology. Yeah. Sure, we'll do that. Okay. Thank you so much, doctor. Thank you, sir. Thank you. Right, Thank sir. you, Pratik, sir. For Yes, sir. participating We'll and end this session. Yeah. Yes, sir. Thank thanks you, sir. everybody for participating and inciting a good discussion. Thank you. Thank you, sir. Good night to you all. We'll wind up this meeting. Sure. Good night, sir. Thank you. Good night.